پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے اور آپ کو ساتھ لے کر تنہا الگ گئے. لے جانے کے بعد آپ کو باطنی تعلیم اور عنایت عطا فرمائی. عنایت عطا فرمانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصاً قرآن مجید کی اجازت عطا فرمائے. کیا اجازت عطا فرمائے؟ قرآن مجید کی اجازت عنایت عطا فرمائے. اس وقت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ حضرت عثمان جامع القرآن کہا جاتا ہے. قرآن کو جمع کرنے والے, قرآن کو جمع کرنے کی اجازت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنی مرضی سے عنایت عطا کیے تھے. ایسا نہیں ہے معاملہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرضی سے قرآن جمع کیے. کئی زبانوں میں قرآن تھا, کئی زبانوں کے لوگ پڑھتے تھے, الگ الگ چھوٹے چھوٹے رشتے جو ہے نا لوگوں کے پاس موجود تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں تمام کے تمام ملکوں سے منگوا کر جہاں تک اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی, جن صحابہ کے پاس قرآن شریف کے جو نسخے تھے وہ تمام کے تمام منگوا کر صرف ایک زبان میں اور ایک طریقے پر بک کی شکل میں اسے بنائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بنا کر جو ہے باقاعدہ قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں رائج ہوا حکومت کی جانب سے. یہ اجازت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود عنایت فرمائے تھے. اب جو ہے نا یہ بھی ایک جہالت ہے لوگوں کے اندر کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ اپنی مرضی سے قرآن بنایا تھا. معاذ اللہ یہ جو ہے نا لوگوں کے اندر ایک گمراہی ہے اور ایک کنفیوژن ہے اور یہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں. مجھے بھی جو ہے نا ایسے ایک پیر ملے تھے, ایک پیر صاحب جو ہے نا ایسے مجھے بھی ملے تھے. جب انہوں نے چند باتیں بتائی تو میں نے پوچھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن کہا جاتا ہے اور پوری دنیا میں قرآن کو جمع کرنے والا مانتے ہیں, تو وہ نام نہاد صوفی کہلانے والا وہ پیر صاحب کیا بولے معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی اپنی مرضی سے قرآن جمائے. تو عثمان غنی معاذ اللہ اپنی مرضی سے قرآن جمائے. قرآن جو ہے نا اس سے پہلے بھی حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تلاوت کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت کرتے تھے, اس وقت بھی قرآن تھا. مگر حضرت عثمان غنی اپنی طرف سے اپنی مرضی سے معاذ اللہ الگ قرآن بنائے. اس طرح کا ایک فتنہ ہے. اب وہ جو پیر صاحب مجھے ملے تھے وہ جب وہ بات بتائے تو میں حیران ہوا کہ یہ کیسا, اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اگر حضرت عثمان غنی اپنی مرضی سے قرآن بنائے یا اپنے سے قرآن بنا کر امت کو دیے تو اللہ تعالیٰ کی آیت جھوٹی ہو گئی, قرآن کی حفاظت ناکام ہوئی, نامکمل ہوئی. تو اس کا کیا, ایسے بھی پیرا لوگا ہے, کیا ہے, ایسے بھی پیرا لوگا ہے جو قرآن کو نہیں مانتے. آج کا جو قرآن ہے اسے نہیں مانتے. ان کا عقیدہ کیا ہے, یہ قرآن حضرت عثمان معاذ اللہ اپنی مرضی سے بنائے تھے, اس طرح کا ان کا کہنا ہے. مگر ایسی پیری مریدی, ایسے پیرا لوگوں سے بھی بچنا. آج کل کی پیری مریدی جو ہے نا ایمان لوٹنے کی پیری مریدی ہے, ایمان بچانے کی نہیں. وہ ایمان لوٹتے ہیں, اس کے علاوہ کیا لوٹتے ہیں معلوم ہے کہ میں بار بار بیانات میں بیان کیا ہوں کہ آج کل کی جو پیری مریدی ہے ایسے جاہل پیروں سے دو چیزوں کو بچانا. کیا, دو چیزوں کو بچانا. وہ کیا, ایک اپنے مال کو بچانا, پیسے کو. ہر پیر کی نظر ہمارے مال دولت پر رکھی. جب بھی آپ مرید بننے گئے, کسی بزرگ کے خدمت میں پہنچنے کا ارادہ کرے تو پیراں پہلا یہ دیکھتے ہیں کہ تو کام کیا کرتا ہوا, تیرا بزنس کیا ہے, تیرے پاس گاڑیاں کتنے ہیں, تیرے پاس پیسے کتنے ہیں, کھیتا کتنے بڑے ہیں, کھیت میں کیا پیڑ ہے, ایسی چیزیں ہیں. پہلا کیا کرتا ہے پیر, تمہاری پراپرٹی کی چھان بین کرتا ہے. پھر اس کے بعد تمہاری ماؤں بہنوں بیووں پر اس کی گندی نظر رہتی, ناپاک نظر رہتی. اب آج کل کی جو پیری مریدی ہے سوائے کاملین کے جو اچھے بزرگ ہیں, جو خاندانی بزرگ ہیں, اچھے جو طریقت کے تعلیم پر باقاعدہ مضبوط طریقے کے ساتھ چل رہے موجود ہیں, وہ بھی ہیں حق پر, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسلام جو ہے قیامت تک با حفاظت چلتے رہنے والا. اور اسلام وہی ہے جو صوفیہ کرام نے دیا, اس کے سوا دوسرا اسلام نہیں. اگر دوسرا اسلام کوئی اگر اپنی مرضی سے پیش کرتا ہے تو وہ اسلام نہیں. اسلام وہی ہے جو اولیاء اللہ نے صوفیہ کرام نے دیا. اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ وہی ہے. انعمت علیہم, کیا, انعمت علیہم یعنی انعام یافتہ بندوں کا. اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام جس پر ہوتا ہے وہ بندہ مقام ولایت پر فائز ہوتا ہے, ولی بن جاتا ہے. انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ سنگت, یہ دوستی, یہ اچھے لوگ, یہ صوفیہ کرام جو دوستی کرنے کے قابل ہیں اور سنگت اختیار کرنے کے قابل ہیں, یہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی پہچان امت میں کروائی اور کرواتے آ رہے ہیں اور قیامت تک چلنے والا. مگر صوفیہ کرام کے نام پر, صوفی کے نام پر
तरीकत के नाम पर, पीरी मुरीदी के नाम पर कई चोर डाकू इसमें घुस गए। घुसकर जो है ना वो लोग या तो हमारे से हमारे पैसे लूटेंगे या तो हमारी माओ बहनों पर गलत निगाह डालेंगे। आप कहीं भी जाकर तहकीक करो, कई सिलसिलों में कई जगह पर ऐसा हुआ, कई जगह पर ऐसा हुआ क्या, या तो वो पीर के पीछे लगकर अपना पैसा बर्बाद कर चुका, या तो अपनी माओ बहनों की इज्जत गंवा चुका। उनकी निगाह जो है ना हमारे औरतों पर रहती या तो हमारे पैसे पर रहती। इस वास्ते ऐसे पीरी मुरीदी से बचना। अब देखो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये एक पीर ने मुझे खुद कहा, एक पीर मुझे खुद बोले थे, डायरेक्ट बोले थे, क्या बोल को, हजरत उस्मान गनी क्या अपनी मर्जी से कुरान जमाए, तो माशाअल्लाह क्या अपने मर्जी से कुरान जमाए, फिर उनकी मर्जी का कुरान जो है ना आगे बढ़ा। अगर ऐसा हुआ तो अल्लाह तबारक तआला ने जो कुरान पाक में आयत नाजिल फरमाई है कि ये कुरान हमने नाजिल किया है और क़यामत तक हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, तो ये अल्लाह ताला का वादा झूठा हो जाएगा, फिर इस्लाम का कुछ बचेगा ही नहीं। इस वास्ते जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नियामतें बांट रहे थे उस वक्त बाकायदा तीसरे नंबर पर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलग ले गए, तन्हा ले गए, बाजू ले जाकर उन्हें इजाजत कुरान मजीद इनायत अता फरमाई, कुरान मजीद की इजाजत इनायत अता फरमाई, और उसमें टोटल सब कुछ आ गया। इन्हें जमा करने की भी इजाजत आ गई और राइज करने की हुकूमत की जानिब से, और हुआ भी ऐसा ही। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में बाकायदा कुरान शरीफ एक मुकम्मल बुक बनकर, किताब बनकर जो है ना राइज हुआ, एक ही जुबान में, एक ही तरीक पर, एक ही तरतीब के साथ राइज हुआ। इसकी इजाजत खुद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में 13 रबीउल अव्वल को जुमा के दिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को इशा के बाद इनायत अता फरमाई थी, ये हदीस पाक में। फिर उसके बाद उसी दिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को इजाजत जब कुरान मजीद की देने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उस्मान तुम्हारे सिलसिले में साहिब बातिन को उरूज तिलावत कुरान मजीद से होगा। ऐ उस्मान तुमसे जो सिलसिला राइज होगा इसका नाम ही इजाजत कुरान मजीद वाला सिलसिला होगा। अब उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला से सिलसिला राइज है, आज भी मौजूद है, किताबों में कई बुजुर्गों के नाम है और कई बुजुर्गों की बाकायदा जो मैंने अभी बयान किया ना सनद और इस्नाद और रावी, इस तरह के इसके रावी हैं और इस्नाद हैं। जिन जिन लोगों ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला से कुरान मजीद की इजाजत ली और किस तरह सिलसिला आया उसकी पूरी मुकम्मल तफसील मौजूद है, और उन इजाजत लेने वालों के नाम भी मौजूद हैं, किस तरह इजाजत ली। फिर जो है ना ये कुरान मजीद की इजाजत वाला सिलसिला हजरत उस्मान गनी से जो राइज हुआ वो आज तक मौजूद है और कयामत तक जारी व सारी रहेगा। अब जो है ना हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ऐ उस्मान तुम्हारे सिलसिले में तुम्हारी इजाजत के साथ जो बंदा कुरान मजीद की तिलावत करेगा उसे खुदा हम कलाम हुआ करेगा। क्या सुभान अल्लाह, क्या हुआ करेगा? खुदा कुरान पढ़ने वाले से अल्लाह तबारक तआला हम कलाम होता है, यानी ये कलामुल्लाह है। कुरान मजीद क्या है? अल्लाह तबारक तआला का कलाम है। अब जरा सोचो कि अल्लाह ताला के कलाम को बदलने की ताकत किस में है? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के अल्लाह के कलाम को बदल सकते थे या उस कलाम में अपना कलाम मिलाकर अल्लाह का कलाम कह सकते थे। ये कैसी गुमराही है, ये जो है ना तरीकत में घुस गई है। ये अकीदा रखने वाले कई पीर मौजूद हैं, ये अकीदा रखने वाले कई पीर मौजूद हैं, और शियों का भी अकीदा है। शिया में भी एक ग्रोह है जिनका अकीदा ये है कि वो कुरान मजीद को नहीं मानते, वो कुरान मजीद को, इस किताब को जो हम पढ़ते हैं आज उसे नहीं मानते। वो कहते हैं कि मौला अली मुश्किल कुशा के पास 10 पारे थे, 10 पारे थे, 2 पारे हजरत उस्मान ने नहीं लिए, अगर वो भी ले लेते तो कुरान के 40 पारे हो जाते थे, कुरान के 40 पारे हो जाते थे। अब सूफिया कराम ने उस पर बहस की है, वो 40 पारे क्या है, वो 40 पारे या अलग थे, क्या यही है, क्या इसी में और 10 पारे गम है, इस तरह की वो राज की कई बातें हैं। मगर कुरान मजीद जो आज हमारे सामने बुक की शक्ल में जो मौजूद है वो हक है, वो अल्लाह की किताब है और अल्लाह का कलाम है। उसकी इजाजत बाकायदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए थे और उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलाम की इजाजत के साथ साथ उसे बुक बनाकर राइज किए। अब आगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या है उस्मान तुम्हारे सिलसिले में कुरान मजीद की इजाजत चलेगी और जो बंदा जो हाफिज कुरान तुम्हारे इजाजत से कुरान तिलावत करेगा उससे खुदा हम कलाम हुआ करेगा। और अगर गैर हाफिज भी, अगर कोई गैर हाफिज है, कुरान शरीफ मुकम्मल हिफ्ज नहीं, गैर हाफिज है, वो भी अगर तुम्हारे सिलसिले में बैत होकर तुम्हारे किसी खलीफा से बा इजाजत कुरान पढ़ेगा तो उससे भी खुदा हम कलाम हुआ करेगा, उससे भी अल्लाह तआला हम कलाम हुआ करेगा। और फिर आका फरमाते हैं कुरान का हर अमल तुम्हारी इजाजत पर मुनहसिर है, कुरान का
हर अमल तुम्हारी इजाजत पर मुनहसर है, तुम्हारी इजाजत के बगैर कोई अमल, कोई ज़कात, कोई दावत, कोई बंदिश, कोई हिफाजत का कुछ असर होगा नहीं। हाँ, होएगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। क्या बोले आका इस्लाम? कुरान करीम की कौन सी भी आयत लो, विर्द करो, वजीफा करो या उसका अमल पढ़ो, ये आमिल लोग पढ़ते हैं, या उसकी ज़कात पढ़ते हैं, ज़कात अदा करते हैं, ज़कात पढ़ते हैं, या इल्म में दावत पढ़ते हैं, ये बाकायदा चिल्ला कशी करके विर्द किया जाता है। और उस लफ्ज़ के या उस आयत के, उसके आयत पर जो मौकिलात हैं, उन मौकिलात को कब्जे में किया जाता है, जिन्नात को कब्जे में किया जाता है। जब ये आयत या एक लफ्ज़ कुरान पाक का पढ़कर तिलावत करके चिल्ला कशी के साथ जो इनायत होता है बुजुर्गों को, ये जो है न, और आमिलों को भी, औलिया अल्लाह भी ये अमल किए हैं और आमिल भी करते हैं। और पर इतना है, आमिल अपनी दुनिया और पैसे कमाने के वास्ते करता है। आमिल क्या करता है? चिल्ला कशी करके कुरान शरीफ किसी आयत का विर्द करके, चिल्ला करके, उस करके मौकिलात और जिन्नात को अपने कब्जे में करके क्या करता है? वो तावीज़ों का अड्डा खोल के बढ़ता है और पैसे कमाता है। मगर औलिया कराम जब ये विर्द करते हैं, जब ये बाकायदा इसका चिल्ला कशी होती है, तो वो उम्मत मुस्लिमा को जो है न, या सारी दुनिया की जो मखलूक है, उम्मत है, उसके वास्ते, उनकी खिदमत के वास्ते उन्होंने इस्तेमाल करते हैं। इस वास्ते उम्मत की खिदमत के वास्ते इस्तेमाल करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? आमिला अपने दुनिया को बढ़ाने के वास्ते, माल दौलत को बढ़ाने के वास्ते करते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले कि जो भी बंदा, जो भी आमिल, जो भी अमल करने वाला है उस्मान, अगर वो दावत पढ़े या अमल करे या किसी आयत की ज़कात अदा करना चाहता है या कुछ भी उस आयत से बंदिश करना चाहता है, तो ये बंदिश, ज़कात, हिफाजत, अमल तुम्हारी इजाज़त के बगैर हो ही नहीं सकती। इसके लिए ज़रूरी है कि तुमसे इजाज़त ली जाए। यानी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ने अपने खलीफा को दिए, फिर उनके वो अपने खलीफा को दिए। ये होते 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 उससे जो है आज तक दुनिया में जारी और सारी है। अगर किसी के पास मुकम्मल कुरान शरीफ की इजाज़त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के ज़रिए नहीं पहुँची, तो आमिलों के वास्ते भी ये खास बात है, जो अमलियात करते हैं उनके वास्ते भी खास बात है, और दूसरों के वास्ते भी, कि बगैर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के इजाज़त के बगैर कौन सा भी अमल वजीफा राइज हुआ ही नहीं। कुरान पाक की कौन सी भी आयत, कौन सा भी लफ्ज़, कौन सा भी वजीफा उनकी इजाज़त के बगैर राइज हुआ ही नहीं, चाहे करने वाले बंदे को पता हो या न हो। मगर वो जो भी अमल पढ़ रहे हैं, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए राइज किया हुआ अमल है। इसकी भी इजाज़त खास हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिए थे। अब जो है न, आमिल लोग या हम भी हों, जो भी हो, एक बात ख्याल में रखना कि अगर हम भी कौन सी भी जिक्र, वजीफा या कुरान पढ़ते हैं या कुरान की एक आयत पढ़ते हैं, तो उसको क्या करना, उसका अगर हमें फ़ायदा हासिल करना है, तो सबसे पहले हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रूह मुबारक उसका स्वागत पहुँचाना। क्या करना? ये बात आमिल भी याद रखना। आमिलों के वास्ते बड़े फ़ायदे की बात है, क्योंकि वो उसकी जड़ ही उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसकी जड़ ही उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये बात अलग, क्योंकि खुलफा में होते होते आया, अब आमिलों तक पहुँचा, अब उनके 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 उस्ताद या इजाज़त देने वाले उनको इजाज़त देते हैं। वो क्या समझते हैं? हमारे पीर मुर्शिद है, हमारे जो है ना उस्ताद, या हमारा ये जो फला आमिल है, अमलियात करने वाला, तावीज़ करने वाला, ये वो चिल्ला किया था इजाज़त के साथ, फिर उसने इस मौकिल को कब्जे में लिया, या जो है ना जिन को कब्जे में लिया, अब जो है ना इसकी इजाज़त उसने हमें दी। ये नहीं है, ये गलत है तरीका। ये जो है ना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये तो वो बाकायदा उनके उस्तादों तक आकर पहुँची। तो आज जितने भी लोग ये कर रहे हैं अमल, ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से राइज करता है। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पूरे के पूरे मुकम्मल कुरान शरीफ की इजाज़त आका अलैहिस्सलाम ने इजाज़त फरमाई थी। तो इस वास्ते हम भी अगर कौन सी भी आयत, या हमें सूरह इखलास पढ़ते हैं, या जो है ना सूरह, ये जो 3 सूरतें हैं मौजूद जिसे कहा जाता है, ये कुल औज़ु बिरब्बिन नास का, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक का, और जो है ना कुल हुवल्लाहु अहद या काफिरून, या जो भी कुरान शरीफ की तिलावत जो भी हमें भी कभी घर में करते रहते हैं, तो उस वक्त जो है ना क्या करना, सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मौला अली मुश्किल कुशा फजल को बख्शने के बाद सबसे पहले हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह मुबारक को खास बख्शना, क्योंकि आका ने आपको इजाज़त इनायत फरमाई थी। आपका जो है ना फैज़, रूहानी फैज़ इसमें हमें शामिल हो। इस तरह जो है आमिल भी ये कर सकते हैं, और हम भी घरों में अगर कोई विद वजीफा या कुछ भी आयतें वगैरह दम करते हैं, सूरह फातिहा वगैरह तिलावत करते हैं, तो सब हम भी ये अमल जो है हमारे मामूलात में रखना चाहिए। अब उसके बाद चौथे नंबर पर हज़रत